echo of his call. Brothers and sisters in the Lord Jesus Christ, प्रभु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, I bring greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ from Echo of His Call Ministries, India. इको ऑफ इस कॉल की तरफ से मैं आप सभी को हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार करता हूं। I know that a lot of people from all over the world are watching this program, and I heard that you are all blessed by this ministry. और मैं विश्वास करता हूं कि विश्व के हर एक के लोग इस कार्यक्रम को देख करके आशीषित हो रहे। Today I want to give you a special announcement in this message. आज के सुबह में संदेश देने से पहले आप सभी लोगों को एक नोटिस देना चाहता हूं। During the past days, the Lord gave me a special blessing to visit some of the countries and various parts of the country of India. पिछले दिनों में जब मैं कि भारत से बाहर विदेश गए, उस समय परमेश्वर मेरे हृदय में एक बोझ को डाला है। During my travel, I have learned something and got a special vision from the Lord Jesus Christ. जब मैं विदेश को यात्रा कर रहा था, उस समय परमेश्वर मुझे खास करके एक दर्शन दिया, एक बोझ को दिया मेरे हृदय में, जो आप लोगों को आज बताने के लिए जा रहा हूं। That is regarding our youth, boys and girls and the children of our present world. और वो दर्शन है कि हर एक जवान, हर एक लड़के और लड़की लोगों के लिए। Nowadays, the children are drawn towards the wrong attitude and wrong aspects of this worldly system. जब हम इस संसार को देखते हैं, आजकल का जवान लोग बहुत सारे गलत कामों में वो लोग को फंसे हुए, गलत चीज़ों को कर रहे हैं। Like the same way, youth, youngsters are being drawn out of the way and they are going away from the Lord Jesus Christ. और जवान भी जब हम देखते हैं, उन लोग भी परमेश्वर को छोड़ करके ये इस संसार के पीछे दौड़ रहे हैं। Children are not willing to attend the Sunday school for the children. बच्चे लोग क्या कर रहे हैं कि संडे स्कूल को जाने के लिए किसी प्रकार का आग्रह को प्रकट नहीं कर रहे। Youngsters are not willing to attend the churches and they are not willing to participate in the activities of the churches. इसी प्रकार जवान को भी हम देखते हैं कि वो लोग भी कलीसिया के किसी कार्यक्रम में भाग देने के लिए कि अपना इच्छा को प्रकट नहीं करते हैं। The Lord God is very sad about the attitude of the children and the youth. और इस कामों को देख करके, जवानों का या बच्चे लोगों का काम को देख करके परमेश्वर काफी दुखित है। The Lord gave me a special burden about the youngsters and the children of this world. इसलिए परमेश्वर की इन दिनों में मुझे मेरे हृदय में एक बोझ, एक दर्शन हर एक जवान के लिए, हर एक बेटा और बेटी के लिए दिया है। Being an insignificant organization, we cannot reach all the youngsters and the children of the whole world. और हम अकेले कि ये हर एक या विश्व के हर एक जवान लोगों के साथ पहुंच नहीं सकते, हमें दूसरे लोगों को भी जरूरत है। But God specifically told me that you are the person to do this great work for me. परंतु परमेश्वर मुझे विशेष तौर से कहा कि आप ही वही व्यक्ति जो कि इस संसार के हर एक जवान और लड़के लड़की के लिए प्रार्थना कर सकते हो। So he gave a title for the new work which we are going to start. और इसलिए परमेश्वर एक मुझे जो नाम दिया है कि उसको मैं बताना चाहता हूँ। It is Global Vision for Youth Care. और ये है ग्लोबल विजन फॉर यूथ केयर। Global Vision for Youth Care. ग्लोबल विजन फॉर यूथ केयर। The Lord gave me this title. और ये कि एक नाम मुझे दिया गया है, जो प्रभु दिया है। By this way we have to collect and gather the whole the people of this world, those who are interested in the welfare of the youth and children, and to pray for the children. और मैं सब लोगों को विनती करना चाहता हूँ कि हर एक लोग इन जवान लोगों के लिए
प्रार्थना करने के लिए आगे बढ़ना है। We cannot go and preach the gospel to all the youngsters and the children of this world. और विश्व की हर एक जवान लोगों को, हर एक संतान के पास हम जा करके सुसमाचार जा करके पहुंच नहीं सकते हैं। But the people, those who are having the same vision from various parts of the world, can join together and pray for these people. परंतु विश्व के हर एक के कोने में जो कोई व्यक्ति इस जवान लोगों के लिए दर्शन या बोझ रखते हैं, उन सारे लोग इकट्ठा हो करके प्रार्थना में आगे बढ़ सकते हैं। To start with, the Lord gave me the vision to request all of you to join this organization by giving your name and your cell phone numbers. संक्षिप्त तौर से अगर मैं बताना चाहता हूं कि इन युवा लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए कि आप सब लोग अपना अपना नाम को दाखिल कीजिए और अपना ये टेलीफोन नंबर भी दीजिए ताकि हम सब मिल करके प्रार्थना कर सकते हैं। Since this is an international prayer force for the youngsters and the children, we have planned to request all of you to pray for the youngsters and the children at 10 o'clock in the night, every day 10 o'clock in your country, according to the time of your country, and pray for the welfare and care of the youngsters and the children. ये काम अंतरराष्ट्रीय स्तर में हो रहा है, इसीलिए आप सभी लोगों को विनती किया जा रहा है कि हर रात को 10 बजे आप सब लोग कुछ समय या 10 बजे सब लोग इकट्ठा होकर के युवा लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। There will not be any financial commitments. और उसके लिए कोई आर्थिक तौर से जरूरत नहीं है। What you have to do is you have to set an alarm in your watch or your cell phone at 10 o'clock every night, and immediately from 10 o'clock, at least 1 minute or more than that, you pray to God for the youth and the children of the whole world. इस प्रार्थना करने के लिए आप सभी लोगों को हम विनती करते हैं कि आप लोगों का मोबाइल में या वॉच में अलार्म लगाइए रात को 10 बजे, और उस समय कि 1 मिनट से लेकर के भी ज़्यादा समय उन युवा लोगों को प्रार्थना में याद कर सकते हैं। On hearing this news through the cell phone, a lot of people have registered their names from Australia to the United States of America and the South Africa and UK and all the parts of the country, parts of the world. They have joined together by giving their names and phone numbers and joined in this organization. इस विज्ञापन को सुन करके कि ऑस्ट्रेलिया से, दक्षिण भारत से और इंग्लैंड से कई लोग अपना अपना नाम को दाखिल किया, अपना नंबर और पता दिया है हमें। The only thing we have to do is at 10 o'clock at night, according to your time, you have to close your eyes and ask the Lord Jesus to bless the youngsters and young children of the whole world, and they should come up in the Christian life. विश्व में आप जहाँ कहीं भी हो तो एक काम कीजिए कि रात को 10 बजे कि अपना टाइम को प्रभु में दीजिए, प्रार्थना कीजिए इन सारे युवा लोगों के लिए। If you are able to send your names and cell phone numbers with WhatsApp facility, we will keep on informing you of the other news about this program. और आप लोग कि अपना नंबर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर दीजिए, ताकि हम लोग कि जो भी कार्यक्रम हो रहा है इन प्रोजेक्ट के दौरान आप सभी को हम बता सकते हैं। Also in future, if you are having a burden about a youngster or a child about their spiritual life, you can mention their names and their age and inform us. We will circulate the name to other people and we will pray for them. और अगर भविष्य में आप लोगों के मन में परमेश्वर डालता है कि उन युवा लोगों के लिए और छोटे बच्चे के लिए प्रार्थना करने के लिए, तो हमें बताइए ताकि हम लोग भी दूसरे को बता सकते हैं कि वो लोग भी आपके लिए प्रार्थना कर पाएं। Now hundreds of brothers and sisters from all over the world have registered their names in this organization, and within few days I hope thousands of people all over the world will register their names. By that way, 24 hours of the day, the prayer will go to heaven from people from various countries of the world about the
youngsters and the children. और अभी तो 100 से लेकर के ज़्यादा लोग भी कि अपना अपना नाम को दाखिल कर रहा है कि आने वाले दिनों में हम विश्वास करते हैं कि 1000 से लोगों और ज़्यादा लोग इस संस्था में जुड़ करके प्रार्थना करके उसके द्वारा कि हमारा सारे लोगों का प्रार्थना मिल करके उस स्वर्ग में कि इन युवा लोगों के लिए प्रार्थना पहुंच सकता है। You can use the same cell phones which you are having. There are 2 cell phones for us. You can use any one of the numbers and send the details to us. हमारा 2 नंबर दिया जाता है, उन 2 नंबर से किसी भी नंबर से आप लोग हमें कि संपर्क कर सकते हैं। I am sure that God will do something great in the lives of youngsters and the children very shortly. मैं विश्वास कि बहुत जल्दी परमेश्वर उन युवाओं के लिए और छोटे बच्चे के जीवन में बड़ा सा काम करने के लिए जा रहे हैं। In my ministerial life, I have found that prayer is the power which moves the hand that moves the world. और मैं मेरे सेवकाई में एक ही अनुभव मुझे मिला है कि प्रार्थना जो कि हमारा जीवन में बड़ा सा काम हो सकता है, सफलता मिल सकता है, दुनिया को हिला सकता है। We solicit your cooperation in this great need. और इस जरूरत के लिए आप सभी लोगों को हम आमंत्रण करते हैं, आप लोग भी हमारा इस कार्यक्रम में कि भाग लीजिए। Just send your names and cell phone numbers and we will register your names and you will get further information from cell phone. कृपया आप लोग का नाम और आप लोग का नंबर दीजिए ताकि हम लोग आपका नाम को दाखिल कर पाएं। In future you can send the names of the youngsters and the children for whom you want to pray, and if you send them we will mention their names and pray. If necessary we will communicate their name to other brothers and sisters all over the country. भविष्य में भी अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी खास युवा के लिए, किसी बच्चे के लिए प्रार्थना करने के लिए, तो हमें उन लोगों को नाम और उसका आयु भी बताइए ताकि हम लोग कि उन लोगों के लिए प्रार्थना करें और दूसरे लोगों को भी भेजेंगे। Not only the country of India, we will circulate and intimate the prayer need to our partners from all the countries of the world. Throughout the world, the believers will pray for a particular thing. इन विनती के लिए खाली भारत में नहीं, भारत से बाहर में भी कि जितने लोग हमारे साथ प्रार्थना करते हैं उन लोग भी उन युवा लोगों के लिए करेंगे। Thank you so much for your cooperation. धन्यवाद करते हैं आप लोग हमारे साथ सहमत होने के लिए। I want to share something from the Bible very quickly. इस समय हम जल्दी से बाइबल से कुछ अंश को देखेंगे। Jeremiah chapter 32:27 says like this. यिर्मयाह उसका 32 का 27 में इस प्रकार कहा गया है, Is there anything too hard for me? क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? This morning God is asking the mankind, is there anything too hard for me? आज हर एक लोगों को परमेश्वर ये सवाल पूछता है कि ऐसा कोई काम है जो मेरे लिए कठिन है। In our practical life, it is not possible to do everything by a man or a woman. जब हमारा व्यवहारिक जीवन में देखते हैं कि हर एक काम को हम लोग के आसान रीति से कर नहीं सकते हैं। Most of the time we expect the help of other people. अधिकांश समय में हम लोग दूसरे का मदद को चाहते हैं उस काम करने के लिए। Other times other people are also not able to help us. और कई बार अन्य लोग भी जिसको हम भरोसा करते मदद करने वो लोग भी नहीं करते। During that time we are expecting God to interfere. उस कठिन समय में हम लोग चाहते हैं, अपेक्षा करते परमेश्वर हमारा जीवन में कुछ काम करे। So this morning God wants you to know that nothing is impossible with God. आज का सुबह परमेश्वर आप लोग को ये बताना चाहता है कि परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी चीज असंभव नहीं है। This morning you may be encountering a lot of troubles and tribulations in your life. आज के सुबह शायद आप लोग को जीवन में किसी प्रकार का कठिनाई, दुख, परेशान होगा। You may be thinking that end has come in your life. और शायद आप लोग सोच रहे हैं कि कब मेरा ये समस्या समाधान होगा। In this situation, Lord Jesus Christ is interfering in your life and asking whether I can do something. और उस परिस्थिति में यीशु मसीह आकर के आप लोगों को कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। If you say yes and believe Him, you can enjoy His blessing
things in your life today. अगर आप कहते हैं कि हाँ प्रभु मुझे मदद कीजिए, वो जरूर आपको आ करके मदद करके आप लोगों को की समस्या का समाधान करेंगे। Here I would like to emphasize 3 words. और इस दौरान मैं 3 बातों को कि बताना चाहता हूँ। Number 1 is me. और पहला बात है कि मैं, Me means who? और मैं मतलब कौन? He is the Lord of Lords. और वो प्रभुओं का प्रभु है, He is the one who has created the whole universe. और जो कि इस स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, He is the one who is administrating this whole world और today. जो कि इस संसार को चलाने वाला व्यक्ति वही है, He can do anything in anybody's life. और वो हर एक लोगों को जीवन में कुछ भी कर सकता He है, is the one who is reigning the whole world. और वही व्यक्ति या वही परमेश्वर इस संसार को राज कर रहा है, He can do great things to you today. और वो आपका जीवन में बड़ा सा काम करेंगे। That's why he has come from heaven to this world. इसीलिए तो वो स्वर्ग से इस संसार को आया हमें मदद करने के The लिए। me means God is able to come and interfere in your life. और मैं मतलब वो आता है हमारा जीवन में जो भी समस्या है उनको दूर करने He के is the लिए, international savior. और वो अंतर्राष्ट्रीय उद्धार करता है, He is Jesus Christ. और वही है यीशु मसीह। He came to this world. ये यीशु मसीह इस धरती को आए थे He died और हमारे पापों के लिए मारा गया, and risen. और वो तीसरे दिन के बाद जी He is उठा now है, in heaven. और अभी वो स्वर्ग में है, He is now reigning the whole world and world system. और आज वो हर एक संसार के हर एक लोगों को की चला रहा है, राज कर रहा है। Second word is too hard. और दूसरे बातों को हम देखेंगे वो है कि बहुत कठिन है। You think that something is too hard in your life. कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये काम मेरे लिए तो बड़ा कठिन है। God wants you to know right now that it is not too hard for him. He can eradicate the problem from your life. पर परमेश्वर आप सभी लोगों को आज के सुबह ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर के सम्मुख में कोई भी चीज कठिन नहीं है। This morning he can speak to you. आज के सुबह परमेश्वर आप सभी को बातें कर रहा है, In this morning he can heal your diseases. और वो आज के सुबह आपके हर एक बीमारी से चंगाई देंगे। This morning he can meet all the financial needs of you. ये आज के सुबह की आपकी हर एक आर्थिक जरूरत को पूरा करेंगे, He can relieve you from the threats of this society. और इस संसार की हर एक चिंता से वो आपको दूर करेगा, Whatever the problem may be. चाहे जो भी समस्या भी हो ना क्यों, Whatever the name of the problem may और be. चाहे जिस प्रकार का नाम का समस्या भी हो ना क्यों, Whatever the seriousness of the problem may और चाहे be. जितनी भी गहरी समस्या हो ना It क्यों, is not too hard for the Lord God. परमेश्वर के लिए उस समस्या का समाधान करने के लिए कोई कठिन नहीं है। Finally, I want to emphasize the word wonders. और तीसरा बातें मैं जो बताना चाहता हूं कि अद्भुत काम, As human being, we cannot do wonders. और मनुष्य होने के कारण हम लोग हर समय अद्भुत या आश्चर्य काम कर नहीं सकते, But we need wonders. परंतु हमें उस अद्भुत काम जरूरत है। The Lord God is ready to do wonders in your life. परमेश्वर तैयार है हमारा जीवन में अद्भुत काम को करने के लिए। He is a wonder working God. हमारा परमेश्वर जो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, There is power in His name. और उसके नाम में सामर्थ शक्ति है। If you tell the name of Jesus Christ, the devil will run away. अगर यीशु मसीह के नाम को पुकारेंगे तो शैतान भाग जाएगा। If you speak the name of the Lord Jesus Christ, all your difficulties flee away. जब यीशु मसीह के नाम को हम बोलते हैं कि हर एक के कठिन दूर हो जाएगा, We are enjoying it every day in our life. और उस यीशु मसीह के नाम को हम लोग हर दिन की अनुभव कर रहे हैं। This morning the same blessing will come upon you. और वही अनुग्रह, वही आशीष आज की सुबह हम आप लोग को जीवन में आएगी। As a servant of God, I promise that God can do wonders in your life. परमेश्वर के दास होने के नाते मैं प्रतिज्ञा करना था कि परमेश्वर आप लोग को जीवन में अद्भुत काम करने के लिए जा रहा है। That can be happen today. आज भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है। Let me pray with you. मैं आप लोगों के साथ प्रार्थना करना चाहता हूँ। Heavenly Father, what a wonderful privilege to pray with my own people who are staying in various parts of the world. स्वर्गीय पिता, इस सुंदर मौका दे कि हम लोग कि इस संसार के हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए मौका देने के लिए धन्यवाद करते हैं। Lord, even though we are living in different parts of the world, you have united us through this media. और परमेश्वर हम लोग
कि इस संसार में अलग अलग स्थानों में है, फिर भी हमें कि दूसरे लोगों को प्रार्थना करने के लिए एकता किया है, इसलिए आपका नाम को हम धन्यवाद You देते हैं। have graciously given the privilege of praying together this morning. प्रभु हमें कि मिलकर के प्रार्थना करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद। As your servant, I speak prosperity upon my people, those who are praying with me right now. आपका दास होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूं, जो भी अभी प्रार्थना उन सारे लोगों के जीवन में आप अनुग्रह को उंडेल दीजिए। If they are doing God's work, Lord, I ask you to prosper their ministry today. अगर कोई सेवा कर रहा है, उन लोगों की सेवा में आप आशीष को उंडेल दीजिए Our mission should be expanded. और उनकी सेवा को आप बढ़ा दीजिए The churches should be expanded. और कलीसिया को बढ़ा दीजिए। Lord, I thank you so much for the people, those who are praying with me. धन्यवाद देते हैं खुदावन, जो जितने लोग मेरे साथ जुड़ करके प्रार्थना कर रहे I हैं। pray for the sick people right now. जो भी बीमार है उन सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा In हूँ। the name of Jesus Christ, I speak healing upon these people. यीशु मसीह के नाम से चंगाई कर दीजिए। All the financial problems may be free away from the lives of my dear brothers and sisters right now. आर्थिक की समस्या को दूर कीजिए। Some people are sick and they are on the sick bed. और जो बीमार है अभी भी कि अपने बिस्तर में है, उन सारे लोगों को आप की चंगाई दीजिए। I pray in Jesus' name they should be blessed and healed right now. यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, अभी इसी वक्त उन सारे भाइयों को जो बिस्तर में है उनको चंगाई I दीजिए। pray for the children of families. और मैं कि परिवार के हर एक संतान के लिए मैं प्रार्थना करता Lord, हूं I bless all the children all over the world. और इस संसार की हर एक संतान को आप आशीषित कीजिए। They should know you as you have taught us when we are children. और इस संसार का हर एक संतान कि आप लोग को आपको जान पाए, आपके ऊपर भरोसा कर पाए। Even when I was young boy, you have taught about you to me. और प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि जब मैं कि छोटे समय थे, उस समय मुझे कि आपका प्रेम और आपको भय करने के सिखाया है। Like the same way, I ask you to send the Holy Spirit upon the children all over the world and bless the children. उसी तरह कि उन सारे विश्व के हर एक के संतान के छोटे बच्चे हर एक लोगों के ऊपर आपके पवित्र आत्मा उंडेल करके आशीषित कीजिए। Also, I pray for the youngsters of this world. और इस समय भी हम प्रार्थना में याद करते हैं कि हर एक जवान को लिए Lord, I ask you to put your hand upon them and bless them, Lord. प्रभु उन सारे ये जवान के ऊपर अपना हाथ उठा करके प्रभु उनके ऊपर रख करके आप आशीषित Let कीजिए। them pray to you regularly. और वो लोग जैसे कि रोज प्रार्थना कर Let पाए them go to their churches regularly. और कलीसिया को हर एक हफ्ता जा पाएंगे Let them enjoy the heavenly blessings in their life. और उन लोगों को जीवन में उस स्वर्गीय का आशीष से डाल दीजिए। I pray for the people, those who have not heard the gospel even once in their life. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय जितने सारे लोग सुसमाचार को नहीं सुना, उन लोगों को भी आप अनुग्रह कीजिए। There are millions of boys and girls and children, those who have not heard the name of Jesus once in their life. लाखों लाखों की लड़कियों लड़कियां बच्चे जो अभी तक सुसमाचार को नहीं सुना, उन लोगों को प्रभु आप अनुग्रह दीजिए। We send the Holy Spirit upon the people. उन लोगों के लिए मार्ग खोल दीजिए और पवित्र आत्मा उन लोगों के जीवन में डाल दीजिए। Cover them by your power and bless them, Lord. और आपकी शक्ति, आपकी सामर्थ, आपकी लहू के द्वारा आप सारे बच्चे के ऊपर In Jesus' name we pray. सुरक्षा दीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen.